جو آنے والے لوک سبھا الیکشن اس میں ہمارا جو امیدوار ہیں ہمارے اننت ناگ ساؤتھ سے میں پہلا نام دینا چاہوں گا جو ہماری کینڈیڈیٹ ہوگا اننت ناگ سیٹ سے. ہم نے گزارش کی ہے اور وہ گزارش ایکسپٹ کی ہوئی ہے. ہم اننت ناگ راجوری سیٹ سے اپنی صدر محبوبہ مفتی کو الیکشن لڑانا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو سینٹرل سری نگر والی سیٹ ہے اس میں ہم اپنے نوجوان وحید الرحمان پرا کو اس کے بعد نارک والی سیٹ بارامولہ سیٹ جو ہے اس سے ہم فیاض احمد میر کو. اس کے بعد میں گزارش کروں گا اپنی صدر محبوبہ مفتی صاحب سے وہ آپ کے ساتھ بات کرے. آئیے ادھر. مدی صاحب مدی صاحب تھو سائڈ میں فٹ نمبر ہماری جو پارلیمنٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ سری نگر سے ہم تینوں نشستوں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہے ہیں. اور جموں میں چھوئی خور اور نقصان کپر گا بل فرٹس شک اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم انڈیا الائنس کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو پورے ملک کے جو حالات ہیں جو مشکلات ہیں اس طرح پورے ملک میں ایک بہت ہی مشکل قسم کا خطرناک قسم کا ماحول بنا ہوا ہے جہاں مائنورٹیز کے ساتھ دن دہاڑے جو ہے ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے. ہم نے سوچا کہ ہم اس پارٹی کو اس الائنس کو ساتھ دیں گے جو جموں کشمیر کے جو ہمارے حالات ہیں اس کو بھی مد نظر رکھ کے آگے چل کے جو ہے صحیح فیصلے لے سکے. تو یہاں بھی ہم نے کوشش کی تھی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. میری ڈگری خواہش تھی یہ کہ ہم یہاں مل جل کے چلیں اور اس کے لیے میں نے پہلے سے انت تک کوشش کی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بامبے میں بھی میں نے یہی کہا کہ ہمارے جو فیصلہ جو جموں کشمیر کی سیٹس کا ہوگا وہ فاروق صاحب کریں گے اور ہمیں ان کے فیصلے سے گلا نہیں ہے کہ وہ 13 سیٹیں لڑنا چاہتے ہیں. ہمیں اس سے گلا نہیں. مجھے گلا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پوچھنا بھی گوارا نہیں سمجھا, ہماری رائے لینا بھی گوارا نہیں سمجھا, اور بجائے اس کے کہ ہمیں بلا کے اپنی جگہ یہ فیصلہ سنا کے پبلکلی اس کو اناؤنس کیا, جس کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا. کیونکہ ہمارا ورکر بہت ہی زیادہ مایوس اور ڈیمورلائز ہو گیا جب اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری PDP کی جمع ختم ہو گئی ہے, اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو آج آپ سب جانتے ہیں کہ جو ساؤتھ کی کانسٹیٹوینسی ہے اس میں کشمیری, میرے گجر بھائی, میرے پہاڑی بھائی, ہمارے ہندو لوگ جو راجوری کے علاقے, نوشہرے کے علاقے میں, سب کو گزارش کروں گی, میری سب سے گزارش ہوگی کہ اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. خاص کر 370 کو غیر آئینی طور سے ختم کرنے کے بعد جو ہمارے حالات ہوئے ہیں, جموں کشمیر بالخصوص کشمیر وادی ایک جیل کی صورت اختیار کر چکا ہے. یہاں بات نہیں کر سکتے ہیں, یہاں آپ دن رات جو ہے الگ الگ ایجنسیز کے چھاپے ڈالے جاتے ہیں, جرنلسٹ بات نہیں کر سکتا ہے, لوگوں کے پاسپورٹ بند ہیں, نوکری اگر کسی کو ملتی بھی ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے, اس کو اس لیے نوکری نہیں دی جاتی کہ تمہارا کوئی رشتے دار امیگرینٹ تھا. تو بڑا مشکل, بات کرنا ہی جرم بن گیا ہے. اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کوئی اینٹی نیشنل کام کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہماری بجلی کا کیا حال ہے, میٹر لگے ہیں, اتنی بجلی فیس
10 गुना होगी, बिजली कहीं नहीं, मगर उसका भी लोगों को इतना बड़ा बोझ डाला गया है। वहीद रहमान पर से कोई बड़ी बेहतर मिसाल नहीं हो सकती। जेल रहा, टॉर्चर इसके सहा, इसके फादर को इसके गम में कैंसर हो गया, इसको उसके साथ बॉम्बे जाने नहीं दिया उसके इलाज के लिए। इसका भांजा दिल्ली में मौत और जिंदगी कश्मकश में था, उसको वहां जाने नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये हमारे घर घर की ट्रेजेडी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हजारों की तादाद में नौजवान मुल्क के दूसरे जेलों में है, वो कोई भी उनमें से सेहतमंद नहीं है। काफियों की सेहत बहुत खराब है। जैसे मैं बार बार जिक्र करती हूँ मलकनाग अनंतनाग का जो एक लड़का जिसको 3rd स्टेज में इस वक्त कैंसर है, वो कहते हैं उसको यहाँ नहीं लाते। तो ये सारी मुश्किलात हैं। हमारे फयाज मीर साहब हैं जो हमारे राज्यसभा मेंबर थे, किसी वजह से जो मैंने इनको ये कहा था कि आप जब 2019 में 370 खत्म किया गया तो आपको इस्तीफा देना है, तो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो मैंने इनको पार्टी से तब खारिज कर दिया था। तो अब चूंकि ये इनको भी पछतावा है कि जो हुआ गलत हुआ, ये वापस आ गए हैं और इनका भी अपने लोगों में इनकी भी अपनी जो है साख है, जवान है, क्योंकि लोग यंग लोगों को देखना चाहते हैं। मैं तो चाहती थी कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता जो यंग होता तो हम उसको भी खड़ा कर सकते थे। बच्चों की लगता है कि दिल्ली वालों ने तमाम जो ताकत है वो साउथ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी उसमें लगा रहे हैं, सबको वहां खड़ा करना चाहते हैं, किसी को डायरेक्टली खड़ा कर रहे हैं, किसी को इनडायरेक्टली खड़ा कर रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि ये, जैसे मैं कहती हूँ मैं फाइटर हूँ और मुझे अपने वर्कर पे यकीन है, तो मैंने सोचा ये चैलेंज कबूल करूँ मैं और मैं वहाँ लड़ूं और अपने जो हमारे लोग हैं, चाहे मेरे कश्मीरी हैं, चाहे मेरे गुजर भाई हैं, चाहे मेरे पहाड़ी हैं, चाहे मेरे सिख हैं, सिख भाई हमारे बहुत हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सबको गुजारिश करूं कि आप पार्लियामेंट में ऐसी आवाज पहुंचाइए जो जम्मू कश्मीर के मसलों के बाद के बिना किसी खौफ के बेबाकी से बात कर सके, तर्जुमानी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी, आपने एक बात की कि आप जम्मू में कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। मेरा पहला सवाल था, कांग्रेस आपको सपोर्ट कहीं पे करेगी? नंबर 1। नंबर 2, आप ये सवाल क्या है कि इसी के साथ कनेक्टेड है। दूसरा सवाल मेरा यही है कि आप लोग यहाँ पे जिस तरह से बात कर रहे हैं कि सब जमातें हम ये करेंगे, मंशूर कोई भी पार्टी नहीं दे रही है। आपकी पार्टी का कोई मंशूर है जो देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि हमने कांग्रेस की जो अलायंस सपोर्ट करें या नहीं करें, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों के ऊपर भरोसा है, उनके सपोर्ट के ऊपर भरोसा है। वो किसको, और दूसरा मैं तो इस वक्त आपके जरिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे लोग हों, चाहे कांग्रेस के मेरे लोग हों, पीडीपी के तो मेरा वर्कर मेरे साथ है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी, अपील करूंगी। इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मेरी आवाज कमजोर है, जब तक आप मेरी आवाज के साथ आवाज नहीं मिलाएंगे। तो इसमें कांग्रेस और पीडीपी की बातें, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी गुजारिश करती हूँ, वर्कर्स को गुजारिश करती हूँ कि साथ दीजिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त हमारी तकलीफ है उसको हम दिल्ली के दरबार तक पहुंचा सके। और दूसरा आपका सवाल था, मेरा सवाल ये कि मंशूर क्या आपकी पार्टी? मंशूर हमारा सबसे बड़ा ये है कि जो पिछले 5 साल से मैं जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे करती आई हूँ, यहाँ के लोगों की आवाज बनी हूँ। जब यहाँ के ट्राइबल्स को घरों से निकाला, यहाँ के लोगों को जमीनों से बाहर निकाला, तो महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंच गई। पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी, पर पार्लियामेंट के बाहर मैंने धरना दिया। इसलिए हमारा सबसे बड़ा मंशूर कि मेरी आवाज को मजबूत करें, ताकि हम पीडीपी की आवाज पार्लियामेंट में पहुंचाए। और जो हमारे मसले हैं, मसाइल हैं, पूरी दुनिया में उनको जानने की, ऐसे तो किसी को पता ही नहीं है। बीजेपी कहती है सब चंगा है, सब ठीक है। अगर ठीक होता तो लद्दाख में आज दफा 144 क्यों लगाया गया है? जम्मू के लोग इतने नाराज क्यों हैं? कश्मीर के लोगों को तो जबान बंदी कर दी, यहाँ तो बोल नहीं सकते आप, मगर लद्दाख का हाल देखिए, जम्मू का हाल देखिए। तो इसलिए मेरी आवाज ही मेरा मंशूर है। अरे हम हमारा यहाँ गठबंधन मजबूत नहीं कर सके,
पहले कहते हैं अपने घर में ना, पहले तो अपना घर हमको देखना चाहिए था, हम बाहर क्या तकरीरें करेंगे उनको, जब हम यहाँ जम्मू कश्मीर जो इसको मुसीबत में है, जो इतनी तकलीफ में है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं, कोई सुनने वाला नहीं अल्लाह ताला के बगैर, जब यहाँ हम अपना गठबंधन मजबूत नहीं कर सके तो उनको क्या तकरीर करूंगी मैं। देखिए ना, ये तो आपने तो आजाद साहब को गिराई नहीं, हाँ? आपने बीजेपी का खाता तो बता दिया, पर आजाद साहब को नहीं गिना आपने, नहीं गिना। वो तो बीजेपी वाले कहते हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे, तो ये तो जमहूरियत तो एक तो इट्स अ बैटल ऑफ आइडिया, इसमें तो कोई भी किसी के खिलाफ लड़ सकता है, ये तो कोई जाती लड़ाई नहीं होती है, ये ख्यालात की जंग है। तो मुझे तो इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जब मैं देखती हूँ अपने लोगों का हाल, उनकी जो जबान बंदी की जा रही है, बात नहीं कर सकते हो आप, तो मुझे दिल करता है कि कोई ना कोई वहाँ जाके यहाँ की असली दिलों की बात करे तो अच्छा है। मैम, अभी तक जिस तरह से आप कोलिशन में थी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपको नहीं लगता है कि आपके इलेक्शन के कैंडिडेट्स अनाउंस करने के बाद यहाँ पर वोट जो है या एज बीजेपी को मिल सकता है? देखिए, ये तो एज की बात नहीं है, ये तो मैंने तो कहा ना, मैंने तो फारूक साहब के हाथ में ही सब कुछ रखा था, मैंने तो उन्हीं के ऊपर डाल दिया था कि यही जिम्मेवारी, मैं तो कहती हम उनको तीनों लड़ने होते, कम से कम हमारे पीडीपी के वर्कर की बेइज्जती न करते, वो ये कहेंगे कि पीडीपी का कोई नामो निशान नहीं, ये सिचुएशन ही नहीं होती, इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो बहुत सब्र किया हमने, यहाँ तक कि उमर साहब ने ये कहा कि हम इनका बिहेवियर कंडक्ट देखेंगे, उसके बाद हम असेंबली के बारे में सोचेंगे। तो कोई अपने जो आपके साथ पार्टी में, आपके पीएचडी में आपके पार्टनर होते हैं, तो क्या इस तरह से बात करते हैं उनके बारे में? हम तो ऐसे कभी उनके बारे में बात नहीं करते। जैसे आपने कहा यहाँ गठबंधन नहीं हुआ तो उनकी बात क्या करेगा, डायरेक्ट उनकी बात करेंगी। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी कुछ घंटे पहले सीधा कहा है कि सेपरेटिज्म वाला मैनिफेस्टो है, ये पाकिस्तान पर मबनी बिल्कुल, क्योंकि उसमें 2 करोड़ नौकरियों के बजाय, जुमले के बजाय ये बताया गया है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, औरतों को 50% रिजर्वेशन देंगे सरकारी नौकरियों में, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और जो दूसरी हेल्पर्स होती है उनकी जो तनख्वाह है वो 2 गुना और ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी, फार्मर्स को एमएसपी मिलेगी, नौजवानों को 1 साल का स्टाइपेंड, उनको 1 साल की नौकरी मिलेगी परमानेंट, जो उनको 1 साल ट्रेन करेंगे, और भी बहुत सारी बातें, 450 का गैस सिलेंडर मिलेगा। अगर ये उनको बीजेपी को ये लगता है कि ये पाकिस्तान की बोली है तो फिर क्या करें? तो कांग्रेस मैनिफेस्टो में आप किस हद पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान कर रहे हैं, इनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात है, मैं समझती हूँ पिछले 70 साल में इतना अच्छा और इतना गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए मैनिफेस्टो आज तक कभी बना नहीं है, खासकर बेरोजगार नौजवानों के लिए और औरतों के लिए। थैंक यू। मैडम, 2019 में आर्टिकल एब्रोगेट हुआ, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सिटिंग एमपी थे वहाँ पे, तो उन्होंने कश्मीरियों के लिए आज तक क्या किया? तो हम ये भरोसा करें कश्मीरी वोट आज फिर से देंगे तो वो क्या होगा? तो आप उनसे सवाल पूछिए, मैं तो 2019 के बाद मैंने तो बहुत तकलीफ सही, मेरी पार्टी तोड़ दी गई, हमारे लीडरों को निकाला गया, मुझे पीएसए लगा, सबसे ज्यादा वक्त मुझे जेल में रखा, मेरे अंकल है, इनका 5 साल से केस चल रहा है, ये वहाँ गांव में रहते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं निकला होगा तो तिहाड़ जेल में होते हैं, मगर फिर भी कई नई साहब हैं, उनको तंग कर रहे हैं, तो ये सब तो आप इससे ज्यादा और क्या कुर्बानी दे सकते हैं आप? क्यों, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।